No mathematical equation can either prove whether God exists, and no mathematical equation can ever prove whether God does not exist. Tell me one philosopher in the world whose philosophy can be explained in one single word. What is one single great takeaway that has helped you embellish your life in the unlimited Jummah sermons that you have heard? When I'll go to the doctor and I know कि मेरी जिंदगी इस डॉक्टर के हाथ में है, will I ask him कि तुम्हारा religion क्या है? We use inshallah as a full stop. People do not actually live in Pakistan. We die the day we are born. It is a stamp on our national identity कि Pakistani people are latecomers. Pakistan needs to be time poor and money rich. आपका जो स्टेट का अफेयर्स हैं, आपकी जो रियासत के अफेयर्स हैं, उसमें मजहब डिफाइन नहीं करेगा कि रियासत कैसे चलेगी. Why are we scared of philosophy? कि वफादारी बशर्ते अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को. मुल्क को कोई अच्छा क्रिश्चियन या हिंदू लीड कर सकता है तो why not? एक हिंदू जितना भी कॉम्पिटेंट हो, एक क्रिश्चियन जितना भी कॉम्पिटेंट हो, एक पारसी जितना भी कॉम्पिटेंट हो, he knows by birth I will never rise to the top. और मौलाना का रोल क्या चेंज होगा? We cannot eliminate it. Remember, सेक्युलरिज्म लातीनियत है. आप सोच भी नहीं सकते कि मौलाना इसके बारे में बात करेगा. अस्सलाम वालेकुम everyone. It's great to be here again on a chilly winter evening in Islamabad. And I want to thank, first of all, the management of Black Hole for always opening the doors for me and letting me speak. Not only this, important बात ये है कि अभी मैं रिसेंटली सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में था और मैंने अपनी जो तकरीर है उसका आगाज़ भी इस बात से किया था कि जिन मुआशरों में लिटरेचर ज़िंदा, अदब ज़िंदा है, वो मुआशरा ज़िंदा है. सो kudos to the management of Black Hole and appreciation their way. Mashal Books, Dr. Parvez Hood Bhai, they have done a phenomenal job. तो मैं तो ये चाहता हूँ पाकिस्तान के हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ के ऊपर एक ब्लैक होल होना चाहिए. Let's have a clap for the team at Black Hole. Number two, whenever I watch Black Hole videos, this writing at the back end, I'm very much impressed. तो ये जो आलम है, आलम शाह, right? So आलम की ये जो art है, this again deserves a lot of appreciation and acknowledgement. आलम, thank you so much for this. अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि I'm a teacher also, so I have a habit of standing for 3 hours. तो मैं 3 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज 1 ही घंटा बात करूँगा. I would want to spend more time in Q&A. Question and answer के अंदर I would like to spend more time. Okay? अब कुछ हाउसकीपिंग आइटम्स. एक तो ये कि लाइफ में आपका सबसे प्राइसलेस एसेट क्या है? इट्स नीदर योर हाउस, नीदर योर कार, नीदर योर वॉच, नथिंग एक्सेप्ट द टाइम दैट यू हैव. और टाइम, यहां पे जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, टाइम इज अ जीरो सम गेम. जीरो सम गेम समझते हैं? हमारा जो वक्त है, जो आज का 1-2 घंटे आपने यहां पर लगा दिए हैं, शाहरुख नदीम को दे दिए हैं, नो वन ऑन अर्थ कैन गिव दोस 2 hours बैक टू यू. सो यू बेटर मेक वर्थ इट, बेटर मेक योर टाइम वर्थ इट. और ना सिर्फ आज ब्लैक होल में जो आप 2 घंटे गुजारेंगे, जिंदगी में जो भी आपने डिसीजन लेना है, वेदर इट बी योर जॉब, वेदर इट बी स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, वेदर इट बी स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, your vocation, your profession, your passion, your obsession, your madness, anything, you have to see कि मेरा वक्त जो है उसकी वैल्यू क्या है. Alright? दूसरी चीज ये कि आज घर जाके एक छोटा सा मैथमेटिक्स कीजिएगा कि आपका जो 1 घंटा है उसकी वर्थ क्या है in terms of monetary value. What is the value of your 1 hour in life? It's a capitalistic way of looking at things and perhaps opposed to the famous Bertrand Russell. But let me tell you, जब आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को कंडक्ट करना शुरू करेंगे, तो I can tell you this is etched in stone that something good will happen to your life. Because once you start valuing time, time starts valuing you. तो ये तमहीद बांधने की वजह ये थी
I want to thank all of you for coming over here and listening to me. Thank you so much. With that, thank you so much. अच्छा, अब जिस तरह नैयर ने कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एट 100. अब इसका प्रेमिस क्या है? प्रेमिस मैं आपको समझा देता हूँ. पाकिस्तान आज से ठीक 22 से 23 साल के बाद 100 साल का हो जाएगा. इसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं सेंटिनेरियन. इन द लाइफ ऑफ नेशंस it's a good enough time to mature. All right? Good enough time. Not, ये नहीं कह सकते कि 100 साल बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, but I think if nature is, if the country is progressive, forward looking, तो वो mature हो जाती है. आप चाइना की example ले लें. In the 60s, 70s, they were downtrodden. Today, you see in a matter of 20-25 years, they changed the game. तो पाकिस्तान के जो पिछले 77 साल रहे हैं, 78 साल, उसमें all of you know, no one of you is happy. हम अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, करप्शन है, पॉलिटिशियंस आर करप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट एन ऑल टाइम हाई, इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, जुडिशियल सिस्टम इज करप्टेड. आई कम फ्रॉम कराची. यू कैन नॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स विद योर फोन इन योर हैंड. सो सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एलीट कैप्चर है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैं ये बातें आपको बताने नहीं आया. सो व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस. सो जब मैंने अपनी किताब रीडिस्तान लॉन्च की, उसको लॉन्च करने का एक पर्पस था, और उस किताब का जो प्रीएम्बल है, जो प्रेफेस है, उसमें मैंने ये बात लिखी हुई है दैट व्हाई आई रोट रीडिस्तान. रीडिस्तान को मैंने बड़ी डम्ड डाउन लैंग्वेज में लिखा था, और उसका पर्पस ये था कि वो किताबें जो मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझे इम्पैक्ट किया है, आई वॉन्ट के द पीपल ऑफ पाकिस्तान, माई नेशन, माई पीपल शुड बी एबल टू रीड दोज बुक्स इन अ मैटर ऑफ 10 to 15 minutes. उसकी वजह क्या है? इट्स नॉट एट ऑल अ रिप्लेसमेंट ऑफ रीडिंग द ओरिजिनल्स. लेकिन आज की दुनिया में जब जेन जी का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम है, a goldfish has an attention span of around 8 to 10 seconds. Our attention span currently is 7 seconds. ऐसे में if I expect people to read Tolstoy's War and Peace, Dostoevsky's Crime and Punishment, it won't happen. The probability rate is very low. 100 लोगों को दूंगा, 2 लोग कंप्लीट करेंगे, 5 करेंगे, 8 करेंगे, 10 करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे. सो उस किताब को लिखने का मकसद ये था कि ऐसी 50 किताबें, ऐसी 60 किताबों का एसेंस मैं आपको दे सकूं, ताकि उसको पढ़ के आप अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जा सके, अपने जहन को खोल सके. यू स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, यू स्टार्ट थिंकिंग विद लॉजिक, यू स्टार्ट थिंकिंग विद रीजनिंग. सो दैट बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर. आज से 3 महीने पहले उसका 3rd एडिशन भी आ गया. एंड आई थिंक द लव दैट बुक हैज गॉट, इट विल बी परपेचुअल. वो चलती रहेगी. Although my royalty is very limited, I won't become a millionaire, but I don't care, right? What I care is कि लोग उसको पढ़ते हैं. तो जब 2 साल पहले मैंने ये almost 2.5 years back, I launched the book. The book became successful. Then an idea came that what's the next step? अब मुझे आगे क्या करना है? तो फिर मैंने किताब लिखनी शुरू की. उस बुक का टाइटल है 100, और उस बुक का सब टाइटल है 100 things that Pakistan needs to do before turning 100. So it's sort of my political manifesto कि पाकिस्तान ने मेरी नजर से, as a citizen of Pakistan, someone who has perhaps made it good socially, मैं पाकिस्तान को क्या proposals दे सकता हूं, recommendations दे सकता हूं, so that Pakistan follows that and is able to grow. I have aspirations of joining politics. I don't know whether I'll be successful or not, or whether I'll be joining or not. But ये किताब मेरा एक political manifesto है कि अगर मैं corridors of power में आता हूं तो मेरा ये plan होगा. Fair enough. Sets the boundary for our talk today. कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं. Some things which you keep on reading in the newspapers, but I think it's better to reiterate and repeat the things. I'll keep my talk bilingual. आप अंग्रेजी भी समझते हैं, उर्दू भी समझते हैं. So, Pakistan, I read 2 or 3 days back that the unemployment rate in Pakistan is 7.1%.
7.1%. Millions and millions of people are unemployed. And this is at an all-time high, this unemployment rate in the past 23 years. Aage chale. The literacy rate of Pakistan is 62.5%. India is close to around 80%. Sri Lanka, I have business in Sri Lanka. They have close to 95+% literacy rate. Aage chale. In the Global Human Development Index, Pakistan ranks at 143rd positions out of 145 nations. अब Human Development Index क्या है? कि जब मेरा बच्चा पैदा होता है तो उसको एजुकेशन के मौके हैं कि नहीं, वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है कि नहीं, जब मेरी घर की खवातीन बाहर निकलती हैं तो डू दे फील सिक्योर और नॉट, क्या जब लड़का जवान होता है तो उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि नहीं. वी स्टैंड एट 143rd पोजिशन. आगे चलें. Judicially, one of the most corrupt and the most disastrous department ever in the world, we stand at 130th according to the global index which ranks the judicial system across the world. And there's a long line. अब आपसे एक जबरदस्त stat share करता हूँ. आप में से कितने लोग economics के हैं? And most of the people I see are in their 20s over here and 30s. By the way, sir, आप लोग भी 20s and 30s में हैं. आप नीचा की बात कर रहे थे. मैं चलिए इस टॉपिक को a bit of a segue, but I think this is important. How do you define youth? We keep on telling, I keep on hearing in the current affairs shows that Pakistan is 65% of the population is below the age of 30. So we are a youthful country. I don't believe in that. What is youth? How do I define youth? Youth is the fire in the belly. It's the Zarathustra hidden inside you. अगर आपकी जिंदगी में जुस्तजू है, स्ट्रगल है, मेहनत है, किसी आइडियल को पाने की चाहत है, मैडनेस है, ऑब्सेशन है, दीवानगी है, तो आप यूथ हैं. नो मैटर यू आर एट द एज ऑफ 18 और 80, डजंट मैटर एट ऑल. सो अगर सर आप 60s में, 70s में, जो भी आपकी एज है, अगर जिंदगी का कोई मकसद है और उस मकसद के पीछे आप सर पट भाग रहे हैं, and it's keeping you alive, then you are youth. और अगर आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, but you have nothing to look forward to in life, there is no ambition, there is no anchor, there is no purpose, please do not classify yourself as youth. तो आइंदे से आपने किसी को भी देखना है ना, the color of your hair won't determine whether you are youthful or not. The desire inside you will determine whether you are youthful or not. नीचा की जबान में, if you have the will to power, if you have the deep ingrained desire to overcome yourself, then you are youth. जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं, बल्कि यहाँ पे किसी ने कहा कि नीचा आपकी कमजोरी है. नीचा वाकई मेरी कमजोरी है. दुनिया का कोई फलसफी ऐसा नहीं है, कोई फलसफी ऐसा नहीं है जिसका फलसफा एक लफ्ज के अंदर बयान कर दिया जाए. एक लफ्ज के अंदर. Tell me one philosopher in the world whose philosophy can be explained in one single word. एक जर्मन वर्ड है Selbstüberwindung. Selbstüberwindung. ये नीचा का पूरा फलसफा. कभी भी आपसे कोई पूछे, सवाल करे कि यार फ्रीडरिक नीचा की बड़ी बातें करते हो, फलसफा क्या है उसका, तो बेझिझक मेरी साइन है इसके नीचे, उसको बता देगा ये नीचा का फलसफा है, Selbstüberwindung. इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है सेल्फ ओवरकमिंग. An individual who is able to overcome itself has the potential to be Nietzsche's Übermensch. और जिंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन दरअसल आप खुद हैं. You yourself are your biggest enemies. We as a nation suffer from excusitis. नवाज शरीफ ने ये नहीं किया, खान ने ये नहीं किया, जरदारी ने ये नहीं किया, बिलावल ने ये नहीं किया. Let me tell you, boys and girls, none of them will ever come to help you. None of them will ever come to help you except for yourself. नौकरियां नहीं है, नौकरियां खुद पैदा करें. एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पैदा करें, अपने अंदर यूथ पैदा करें, आग पैदा करें. ये जो नीचा की किताब है, थस स्पोक ज़ाराथुस्त्र और फिर ज़रतुश्त ने कहा, इसका मतलब क्या है? Zarathustra is a symbol of fire.
तो जब जरथुष्ट बोलता है तो आपके जीवन की आग बोलती है, आपके अंदर की आग बोलती है. दैट इज व्हाट ही वांटेड टू कन्वे. सो कीपिंग दिस सेगवे इन माइंड, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप यूथ की बात करते हैं, कीप दैट फायर बर्निंग इनसाइड यू. कमिंग बैक, कंडीशन इन पाकिस्तान में आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूं. पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर है ना बजट का, वो है 18,877 अरब रुपए. 18,877 अरब रुपए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खर्च करने हैं. 2024-25 का ये बजट है. इसमें से 9,775 अरब पाकिस्तान पेज फॉर डेट सर्विसिंग, जो कर्ज लिए फॉरेन एंड डोमेस्टिक डेट, टू रिटर्न दैट. दैट्स 51% ऑफ योर एक्सपेंडिचर. आगे चलें. 2,122 अरब रुपए मिलिट्री के पास जाते हैं ऑन द रिकॉर्ड्स, ऑफ द रिकॉर्ड्स बेतहाशा, ऑन द रिकॉर्ड्स. 11% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर गोज टू द मिलिट्री. 51 जमा 12, 63%. आगे चलें. 1.3 billion or 1,363 billion, I guess, goes to subsidies, around 7%. कितना हो गया? 70. और 1,000 अरब जाता है पेंशन्स के ऊपर. कितना हो गया? 74%. गेम ओवर. गेम ओवर. वी आर एक्सपेक्टिंग कि मुल्क में इकोनॉमी बढ़ेगी, मुल्क में प्रोजेक्ट अपना पब्लिक डेवलपमेंट होगी, पब्लिक स्पेंडिंग होगी, पार्क्स बनेंगे, एजुकेशन सेंटर्स बनेंगे, आईटी पार्क्स बनेंगे. 74% आपका बजट चला गया है on which has nothing to do with the overall development of the economy, so to say. ये टॉप लाइन सुपरफिशियल बात कर रहा हूं अभी. आई एम नॉट गेटिंग डीप इनसाइड. तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, इसको इस तरह समझें कि अगर आपके घर में 100 रुपए कमाए जाते हैं, उसमें से 74% is spent on activities which has nothing to do with improving your income. How will that country improve? We are a security state. We have been made a security state. मैं इस्लामाबाद एंटर हो रहा था, मैंने एक नया देखा ICT पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद एंट्री पे ही. There is a check post as you enter Islamabad. It slows down the traffic. Another security check. One after the other, we are establishing ourselves. We are already established as a security state. But until and unless we do not change our course, we would never be able to break the ice or break the barrier. अब मैंने तो किताब में तकरीबन 100 चीजें लिखी हैं. वो 100 चीजें तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें जरूर आपसे डिस्कस करूंगा. पहली चीज है द नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. अब ये है क्या चीज? व्हाट डू आई मीन विद दैट? मेरी किताब का जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. ऑलराइट. अब इससे मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट का मतलब क्या है? वी एज अ नेशन हैव अ स्पेसिफिक टैंजेंट ऑफ थिंकिंग. हमारी हर गुफ्तगू कभी भी इंशाअल्लाह के बगैर खत्म नहीं होती. वी ऑलवेज वेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन to make things happen. We are never on time. We never fulfill our commitments on time. We never do our deeds on time. Nothing we follow on the tenets of religion or the social fabric or the moral fabric that the society wants us to do. And eventually हर चीज जो है खत्म कहां पर होती है? इंशाअल्लाह के ऊपर. अब ये छोटी सी एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं. मैं कोरियन एम्बेसी में जॉब करता था. मेरी पहली जॉब थी प्रोटोकॉल ऑफिसर. वो कहते थे, शाहरुख, when you become clueless or when anyone in Pakistan becomes clueless, they say inshallah. They used to laugh actually. उनको लगता था कि जब काम नहीं होगा वो कहते थे इंशाल्लाह. 9 Lives of Pakistan. There's a book called The 9 Lives of Pakistan. The first chapter of that book is titled Inshallah Nation. So we are an Inshallah nation. कहने को ये एक छोटा सा लफ्ज है, but like I said, इसकी implications बहुत deep,
डार्क और प्रोफाउंड है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये लफ्ज ना कहें, आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू कीप ऑन वेटिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन टू मेक थिंग्स हैपन and deny the laws of cause and effect, nothing and absolutely nothing will ever change in Pakistan. मैं आपको बता रहा हूं, मैं लाहौर से निकला, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, उसके अंदर फ्यूल डलवाया, 250-300 किलोमीटर हम चले, उसके बाद चल के मैं यहां पर होटल में मैंने चेक इन किया, चेक इन के बाद मैं यहां पर पहुंचा. एवरीथिंग हैड अ cause and an effect. But if we say कि हर चीज बहुक्म इलाही होगी, it doesn't work this way. Europe realized it 600 years back or 400 years back during the humanism movement, during the movement of Reformation, usse pehle Renaissance. Church ka ghalba, which we call as the Dark Ages, church was dominant on the entire thought process, jisko Kalisa kehte hain, of Europe for almost 800 to 1000 years. No one could challenge the priest. No one could challenge the church. And they were the largest feudals of Europe back in the day. लेकिन उसके बाद इंसानियत ने, यूरोपियंस ने ये realize किया that the laws of the universe won't be made by divine intervention, they will be made by people over here. So the first thing I want the people of Pakistan to learn is, and that is what I'm propagating in my book, I'm a Muslim. I'm a Muslim. But I believe I'm an existentialist as well. जो लोग फिलॉसफी को समझते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म की मोटी मोटी सोच बता देता हूं. एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है. देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ. नाउ दैट इज अ conundrum. दैट क्रिएट्स अ डिलेमा. दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि अगर जिंदगी का मकसद नहीं है तो कुछ लोग इसको नाइहिलिज्म की तरफ ले जाते हैं. लेकिन आई एम अ पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियलिस्ट लाइक नीचे. अक्सर लोग समझते हैं कि वो पैसिव नाइहिलिस्ट था. ही वॉज एन एक्टिव नाइहिलिस्ट, और एक्टिव ही वॉज एक्चुअली द प्रिकर्सर टू एग्जिस्टेंशियलिज्म. सार्ट्रा की जो स्टेटमेंट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, नीचे सेट द फ्रेमवर्क फॉर दैट. सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट सोच ये कहती है कि अगर जिंदगी का मकसद नहीं है तो मैं खुद डिफाइन करूंगा कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद होगा. And I want my nation to finally realize कि जिंदगी का मकसद, पाकिस्तान का मकसद, नेशनहुड हम खुद चलाएंगे. And for that the constitution needs to change. Article 41 and Article 91 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan says that no non-Muslim can ever become the President and the Prime Minister of Pakistan. I have utmost respect for the Constitution, but मुझे एक बात बताएं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मैं अपने ऊपर ही कर लेता हूं वो थॉट एक्सपेरिमेंट. समझे मुझे दिल का अर्ज है, आई हैव एन हार्ट एलिमेंट. Who would I go to? A doctor? Who would I seek? I will seek the best doctor in Pakistan, जिसको मैं अफोर्ड कर सकता हूं. When I'll go to the doctor and I know कि मेरी जिंदगी इस डॉक्टर के हाथ में है, will I ask him कि तुम्हारा रिलीजन क्या है? I will never ask him. I'll trust his credentials. But in case of Pakistan, at the top of the game, only a Muslim can sit. Why? अगर आज इस रूम के अंदर एक ऐसा हिंदू है, एक ऐसा क्रिश्चियन है जो कॉम्पिटेंसी में मेरे से 100 गुना अच्छा है, जिसका IQ लेवल 150 प्लस है, जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस टॉप नॉच है, who is certified, who is qualified, who is willing to lead the nation, मैनेजमेंट स्किल्स भी टॉप लेवल है, why as a Muslim the law should be biased towards me rather than that Hindu or a Christian? You need to start thinking like this. कि अगर मुल्क को कोई अच्छा क्रिश्चियन या हिंदू लीड कर सकता है तो why not? Why not? Isn't it injustice right at the constitutional level? मतलब आपने मुआशरे की बुनियाद, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव ही ऐसे रख दी कि वहीं से बायस और फ्रिक्शन स्टार्ट हो गई. एक हिंदू जितना भी कॉम्पिटेंट हो, एक क्रिश्चियन जितना भी कॉम्पिटेंट हो, एक पारसी जितना भी कॉम्पिटेंट हो, he knows by birth I will never rise to the top. Isn't this injustice? Without wearing any sort of mask, whether it be religious or societal or moral,
आप इसको बगैर किसी लेंस के देखेंगे, इट्स हाई लेवल इनजस्टिस। तो मैं जो नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट चाहता हूं, व्हाट आई वांट रीवायरिंग, रीटूलिंग, रीइमेजिनिंग, deconstructing and reconstructing of the thought process that is followed in the Islamic Republic of Pakistan. That is what I want. तो मेरी किताब का जो पहला चैप्टर है वो इसी नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट के हवाले से है, और उसमें मैंने इंशाल्लाह का वर्ड का जिक्र किया है, और उसका जो इस्तेमाल मैं अपने रिसेंटली एक अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बैठा हुआ था, इट्स अ वेरी सटल वे ऑफ पुटिंग दिस, यूज इंशाल्लाह एज अ कॉमा, नॉट एज अ फुल स्टॉप. वी यूज इंशाल्लाह एज अ फुल स्टॉप. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हमें थोड़ा सा अपना सोचने का टेंजेंट चेंज करना है. एंड दिस इज अगेन अ लॉन्ग डिटेल थिंग, बट आई नीड टू कम टू द सेकंड पॉइंट. दूसरा ये, द रोल ऑफ मौलाना इन पाकिस्तान. अगेन पीपल आर पेट्रिफाइड, बट आई एम वेरी वोकल इन माई यूट्यूब वीडियोज एज वेल. व्हाट इज द रोल ऑफ अ मौलाना? अब मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर बात करता हूं. आपकी जिंदगी में आपको नमाज पढ़नी सिखाई गई, आपको बताया गया कि जुम्मे की नमाज इंपॉर्टेंट है, 4 जुम्मे नहीं पढ़े तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे. ये हमें सिखाया गया. जुम्मे का सर्मन होता है, खुतबा होता है, उसको हमने सीखा या सुना. What is one single great takeaway that has helped you embellish your life in the unlimited Jummah sermons that you have heard? Here you go. The result is out. तो मैंने अपनी किताब के अंदर मौलाना के रोल को चेंज करने की बात कही है. और मौलाना का रोल क्या चेंज होगा? We cannot eliminate it. Remember, as a Nietzschean, I shoot for the top. I shoot for kill. Because I am a Nietzschean. Philosophizing with the hammer. However, in case of Pakistan, मैंने इसको थोड़ा सा एक ग्रेजुअल प्रोसेस में, बिकॉज आई वॉन्ट थिंग टू बी सक्सेसफुल, आई डोंट वॉन्ट थिंग्स टू फॉल अपार्ट, आई वॉन्ट द एक्सपेरिमेंट और दिस एंटायर थिंग विच आई एम ट्राइंग टू प्रोपगेट टू बी सक्सेसफुल. मौलाना बिल्कुल मस्जिद चलाएं, जुम्मे के खुतबे दें, लेकिन मैं उसके अंदर एक चेंज चाहता हूं. वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है, पंद्रह मिनट उस खुतबे में या 10 मिनट, द स्पीकर और द मौलाना हु इज लीडिंग द सर्मन विल स्पीक ऑन मॉडर्न लॉज ऑफ फिजिक्स, will speak on artificial intelligence, will speak on how AI will change the moral and social fabric of the society. Completely change. आप सोच भी नहीं सकते कि मौलाना इसके बारे में बात करेगा, लेकिन ये होगा कैसे? सवाल तो ये कि शाहरुख, इट्स अ वेरी यूटोपियन, यार यू आर बीइंग टू आइडियलिस्टिक. लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर आप आइडियलिस्टिक नहीं है ना, तो जिंदगी में यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ. Until and unless you're not idealistic, how will you push? How will you struggle if you do not have ideals? So I have a plan for this, and let me disclose you the plan. The plan is कि आपके जो मौलाना जो भी डेजिग्नेट होंगे मस्जिदों के अंदर, मसाजिद के अंदर, they won't be done on ad hoc basis. ऐसा नहीं होगा कि किसी का भी दिल किया उसने मस्जिद बना ली और वहां पर मौलाना बिठा दिया. There has to be a recruitment and there will be a recruitment and selection board which will select a Maulana based on his education first. My proposal is कि अगर आपने किसी भी मौलवी को, क्लर्जी को जुम्मे का खुतबा लीड करवाना है, उसके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, not only in Islamic studies but in STEM sciences, technology, engineering, mathematics, artificial intelligence. Select anyone, but he needs to have exposure. अगर नहीं है, not qualified, rejected. Radical, but हमने experiments कर लिए ना हर तरह के. Nothing is working. और ये जो mental, how do I put it? The inception of idea actually starts subconsciously right from childhood. As Sigmund Freud said, your repressed desires eventually rise up and define your consciousness.
ये जो बचपन से ग्रो अप होते हैं ना, इसको मिमेटिक्स कहते हैं। युवाल हरारी कहता है मिमेटिक्स। आपके आसपास की जो लैंग्वेज है, जो डिस्कशंस हैं, जो सबकॉन्शियसली आपका ज़हन अपने अंदर रजिस्टर कर रहा है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी विदाउट यू इवन नोइंग। एंड विदाउट यू इवन नोइंग आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आपको पता ही नहीं लगता व्हाट वाज ब्लडी रॉन्ग विद मी, मेरे साथ मसला क्या था जिंदगी में। तो आई वांट टू सेट दिस फाउंडेशन कि अगर आपने क्लर्जी बिठाना है, वो बैचलर डिग्री होल्डर होगा और कुछ ना कुछ उसने मॉडर्न साइंसेस पढ़ी होगी, और वो जुम्मे के खुतबे में 5 से 10 मिनट इस साइंस के ऊपर बात करेगा। एंड इवन द कोर्स व्हाट ही हैज टू डिलीवर विल हैव टू बी रेगुलेटेड। इसमें कोई मसला नहीं है। इसका मकसद क्या है जुम्मे का, कि एक कांग्रीगेशन है, उसमें अगर आप लोगों को एनलाइटनमेंट दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, किसी बंदे की जिंदगी को दुरुस्त कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, उसकी जिंदगी को एंकर प्रोवाइड कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी, ग्रेट सर्विस। एंड द चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये जो नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट वाली बात है ना, क्योंकि मेरा किताब का जो पहली थीम है वो सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है। आवर नेशन, वी कैन हैव द बेस्ट फ्लाईओवर्स, we can have the best roads, we can have the best buildings, we can have the best architecture, but if the nation doesn't know how to think rationally, we will never ever 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 be able to grow. And that's the mental cage we are stuck in. I want to break this cage. आगे चलें, the role of madrasa. 35,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में, 35,000 madrasas in Pakistan. 4 million students study over there. 40 lakh students study in the madrasas of Pakistan. I know our quintessential classical education system hasn't produced any scholars. एक हमने world class scientist पैदा किया, और उसके साथ जो हमने किया वो आप सबको पता है. But these madrasas haven't been able to produce a single scholar, a world class researcher, a Nobel laureate, years after years after years. So the madrasa system actually needs to change. 35,000 हैं, 4 million लोग हैं. Actually, in the language of philosophy, people do not actually live in Pakistan. We die the day we are born, because we are born with a certain set of ideals, and we are never able to break the cage. हम उसको तोड़ ही नहीं पाते, और जो शख्स तोड़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं, उसको ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाता है. एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट केज्ड बर्ड्स थिंक फ्लाइंग इज अ क्राइम. जो परिंदे केज के अंदर बंधे हुए हैं उनको लगता है कि तू उड़ रहा है, ये तेरा जुर्म है. हालांकि अ परिंदा, अ बर्ड इज मेंट टू फ्लाई, एंड यू पीपल आर मेंट टू फ्लाई. वी आर मेंट टू फ्लाई. Fourth, we often hear about secularism. Okay, मैं अज़रबैजान गया, and I'm telling you a personal anecdote. मैं अज़रबैजान गया, जो हमारी टूरिस्ट गाइड थी, a young lady, very very enterprising. उसने कहा कि we are a declared secular nation. उसने हमें बस में ही बता दिया. अच्छा, as we were about to offload, so she said something which embarrassed me to the core. उसने कहा, all of you are Pakistanis. Listen to this. She said, all of you are Pakistanis, and I know you will be late. In the morning we have a plan, and since all of you are Pakistanis, you will be late. Don't be late. If you are late, I'll leave the bus without any one of you. कहने को एक मामूली सी statement है. It's a simple statement, but it is a stamp on our national identity कि पाकिस्तानी people are late comers. और टाइम के ऊपर मैं पहले ही आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में ही पूरा बता चुका हूँ कि what is the essence of time. ज़िया मुहिउद्दीन साहब के पास में गया अपनी किताब प्रेजेंट करने. Great man, at the age of 91 when I entered the room, he was studying the dictionary. तो मैंने पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैं डिक्शनरी से वर्ड निकाल रहा हूँ, and I'm beefing up my vocabulary. At the age of I think 89, 90, 91 के थे. And he said, उनकी सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि शाहरुख, be on time.
If you are late, he won't meet you. और मेरी आदत है हमेशा से, बाय नेचर मैं हमेशा 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ कहीं पे। आज यहाँ पे भी मैं 6 बजे पहुंच गया था. I was here 5:58 पे मैं I was right outside. I was on time, no big deal for me. तो उन्होंने कहा शाहरुख, मैंने कहा सर यू आर वेरी मिलिट्री प्रिसीजन व्हेन इट कम्स टू टाइम. वो कहते हैं पाकिस्तान में एक आदत है, लोग कहते हैं 10-15 मिनट में, बस आ रहा हूं मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूं. तो कहते 10-15, ये तो 25 मिनट हो गए. So if I have to start a show at 6:30, my show doesn't start at 6:31, it starts at 6:30. I don't care whether someone appears or not. और मैं टाइम को किस तरीके से देखता हूँ, इस वक्त इस रूम में अगर 100 लोग हैं, there must be around 70-80 people or 100 people. अगर मैं 5 मिनट लेट होता आज, और मेरी वजह से 5 मिनट लेट ये शो या ये हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती, I would have wasted 500 minutes of the time of this black hole. 500 को जरा डिवाइड करें 60 से. If my mathematics is right, it's around what? 8 hours? 8 hours in could we would have, I getting late by 5 minutes would have wasted 8 hours, sorry, of our collective time. इसी से एक थॉट मेरे ज़हन में आ रही है, इस बात को जरा समझिएगा, what I'm trying to say. Pakistan's GDP per capita, can anyone let me know? What is the GDP per capita of Pakistan? 1600. $1643. Huh? What is GDP per capita? GDP per capita is a great metric to know about the average income of a company. वैसे gross national income भी होती है GNI, but GDP per capita के हिसाब से भी लोग एक मुल्क के बारे में पता लगाते हैं कि इन लोगों का standard of living क्या है. So Pakistan's GDP per capita is $1643. If you divide this by 12, the number is 38,600. I took the dollar rate at 282. हम सब लोगों की अर्निंग है 38,600 रुपए. That's the reality of Pakistan. What does this mean? We are an extremely poor country. We are an extremely poor country. And without adjusting for inflation or currency difference, do you know what's the GDP per capita of a Singaporean in Pakistani rupees? 2.8 million, 28 लाख रुपए. अब एक सिंगापोरियन और एक पाकिस्तानी की सोच में जमीन और आसमान का फर्क होगा कि नहीं? But I think we are a rich nation. Why? We are time rich and money poor. Let me repeat. We are time rich and money poor. What does this mean? हमारे पास थड़े पे बैठ के चाय पराठे के ऊपर बिजनेस आइडियाज बनाने का बहुत टाइम है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वेलापन. In English we say leisure. We have a lot of leisure time. So we have time rich, बहुत वक्त है. Money poor. ऐसे मुल्क कभी भी कामयाब नहीं होते. मुल्क वो कामयाब होते हैं who are time poor and money rich. And that is why I keep on reiterating, whichever seminar I go, whatever speech I deliver, I always say this, that Pakistan needs to be time poor and money rich. With that thought, it was a segue, so I'll come back to the topic of secularism. सेक्युलर सोच मोटी मोटी क्या है कि आपका जो स्टेट का अफेयर्स हैं, आपकी जो रियासत के अफेयर्स हैं, उसमें मजहब डिफाइन नहीं करेगा कि रियासत कैसे चलेगी. लोग इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे कुछ थॉट लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म लादीनियत है, कि तुम दीन से दूर लेके जाओगे लोगों को. मैं तो ये कह रहा हूं, और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, इफ समवन इज कॉम्पिटेंट, नो मैटर व्हाट हिज रिलीजियस एफिनिटी इज और एफिलिएशन इज, I don't care. What I want is my country to work well, the nuts and bolts of my country to work well. I want a good transport minister. I want a good education minister, a qualified education minister. I want a great interior minister who's qualified without his religious affiliation. आप इंडिया को देख लें, a declared secular state. I am not saying कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है, लेकिन इंडिया का मिडिल क्लास doesn't care कि आपका मजहब क्या है. Yes, there is Hindu nationalism over there.
Yes, there is extremism over there, but they do not believe in doctrinal absolutism. और पाकिस्तान जब तक डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर चलता रहेगा, आगे अंधेर है, आगे डार्कनेस है. So I'm saying, do not change the name of Pakistan, but at least be secular in your ways. Be secular in your ways. Be pluralistic. अपनी सोच को वसी करें, अपनी सोच के दायरे को वसी करें. Only then will you be able to break this barrier. Moving on. Pakistan there's a specific mindset in Pakistan known as the middle class mindset. And I'm not saying that I'm from the elite class. I've worked myself, मैं नीचे से उठा हूं. And in middle class societies, like I said, we are actually a poor country. We are not even middle class. Middle class societies के अंदर ना पैसे को लेकर एक guilt we carry a guilt. And let me give you an example for that. अक्सर औकात आपने ये लफ्ज सुना होगा अपने दोस्तों यारों में, यार ये शख्स बड़ा materialistic है, ये बड़ा money minded है. And we use it as a negative connotation. Negatively. What's the harm in earning money as long as he's doing it through justified means, legally, ethically, without harming anyone or hurting the society? More power to you. You should be earning money. But in Pakistan, we think that earning money is tantamount to he or she doing some illegal activities. That is the peril of a middle class mindset. और इसमें सबसे पहली चीज क्या है? Our lust, our madness, our obsession for a government job. I know there are CSS aspirants over here. And I in no which way mean to belittle, demean, degrade you in any which way or discourage you in any which way. आप CSS करें, मेरे से बहुत लोग आके मिलते हैं CSS एस्पिरेंट्स, किताबों की रिकमेंडेशन लेते हैं, और मैं हमेशा मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं कहते हैं हमें CSS करना है, I provide them all the support. Nothing against you. I want you people to be officers, deputy commissioners, फॉरेन ऑफिस में जाएं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें. लेकिन ये जो सोच है ना गवर्नमेंट जॉब की, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें. What is if you have read Dostoevsky or Sigmund Freud, he goes in the deep dark layers of how human psychology works. और आपने किसी भी नेशन को डिकोड करना हो, किसी भी कौम को या किसी भी शख्स को समझना हो कि उसकी ज़हन में चल क्या रहा है, तो आप उसकी डीप साइकोलॉजिकल लेयर्स को खोजना शुरू करें, एक्सप्लोर करना शुरू करें. सो दिस लव फॉर गवर्नमेंट जॉब, इसके पीछे है क्या? इसके पीछे है सेफ्टी, नथिंग एल्स. व्हाई? वी आर अ पुअर कंट्री. 38,000 कमाते हैं, मुझे एक ऐसी जॉब पर लगना है जहां पे सारी उम्र मैं बैठा रहूं और मुझे कोई कुछ कहने वाला ना हो. एंड रिमेंबर दैट सेफ्टी लीड्स टू कंफर्ट जोन. And that comfort zone is a recipe of disaster. It's the most infertile place in the world. So I'm in any which way not dissuading you or demotivating you. आप बने, लेकिन अगर आप उस गवर्नमेंट की जॉब को परस्यू कर रहे हैं in the hope of becoming more secure, you will never be able to follow the principle of Selbstüberwindung. उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान जैसे मुआशरों में गवर्नमेंट की जॉब का मतलब है 2 साल की छुट्टी and you are being paid. You going to office at 11 and leaving at 3 and you are being paid. You stopping the files of people deliberately and you being paid. Why? Why there is no accountability? पाकिस्तान का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, it's one of the most corrupt departments in the world. Judicial system is one of the worst in the world. ब्यूरोक्रेसी का आप हाल देख लें, कि पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस की परफॉर्मेंस देख लें, कि व्हाट इज द नैरेटिव दैट वी हैव बिल्ट इन द पास्ट 78 years. पाकिस्तान में उसका द प्रूफ ऑफ पुटिंग लाइज इन ईटिंग इट. उसका टेस्ट क्या है? पाकिस्तान में FDI कितना है? 4-5 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है. फॉरेन एक्सपोर्ट्स, IT एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कितनी है? 3.5 अरब डॉलर. इंडिया की क्रॉस टू $50 billion.
अगर इंडिया पाकिस्तान से 10x बड़ा है, चलो मैं कहता हूं 3.5 नहीं, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं 35 अरब डॉलर, इंडिया इज 250+ बिलियन डॉलर्स. व्हाई? द सेफ्टी, द सिक्योरिटी. और ऐसा नहीं है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, वी आर एंटरप्रेन्योरियल. और क्यों है एंटरप्रेन्योरियल? इसके पीछे भी साइकोलॉजी समझे कि हर वो मुल्क जहां पर प्रॉब्लम्स होते हैं, हर वो मुल्क जहां पर हर स्टेप पे दे आर हर्डल्स, इंपेडिमेंट्स, चैलेंजेस, वो कौमें हमेशा एंटरप्रेन्योरियल होती हैं. और पाकिस्तानी वाकई जुगाड़ी हैं. बट वी आर स्टक इन द मेंटल केज. So the first thing that we need to break this middle class ceiling is stop pursuing your aspirations for a government job. Be entrepreneurial. क्योंकि आज की दुनिया में अगर कामयाब होना है तो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट रखना पड़ेगा. Pursue it with utmost humility, morality, honesty. Don't be dishonest, don't hurt anyone. लेकिन entrepreneurial initiative लें, सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं, बिजनेस एस्टैब्लिश करें, कोई सब्जी की रेडी लगा लें यार, मॉडर्न ऑनलाइन सब्जी बेच लें, ऑनलाइन खवातीन की ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू कर दें. जिस मुआशरे में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पे. एंड आई टेल माय स्टूडेंट्स व्हेन आई टीच देम एंटरप्रेन्योरशिप दैट पाकिस्तान इज अ गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. व्हाई? एवरी स्टेप ऑफ द वे देयर इज अ प्रॉब्लम. खवातीन बाहर मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती. प्रॉब्लम कैन रिजल्ट इन एन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव. बच्चा जब बड़ा होता है उसके पास नौकरी की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम कैन लीड टू एन अपॉर्चुनिटी. जब लोग पाकिस्तान में बूढ़े हो जाते हैं, कोई वोकेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, प्रॉब्लम एन अपॉर्चुनिटी. जब मैं अस्पताल जाता हूं तो मुझे एक के बाद एक रेड टेप फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एवरी स्टेप ऑफ द वे इन पाकिस्तान हैज एन अपॉर्चुनिटी. That is why I'm so gung-ho about the future of Pakistan. I live for Pakistan. And it's not any sham jingoism or patriotism. भाई मैंने जिस मुल्क ने मुझे इतना दिया है, एक सोसाइटी में मुकाम दिया है, मेरे चैनल को इतना बड़ा बना दिया, तो I want to give back to my people in absolute honesty. Why not? Why not? And if I want to propagate a thought whereby it can change the lives of people, तो why not? I will continue to do so. चाहे वो लोगों की इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट के थ्रू हो, मेरी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, मेरे बिजनेस के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, I'll continue to push my way. I'll continue to push forward. और वो नीचा को जो भी पढ़ता है, विल टू पावर का फलसफा ये है, you keep on pushing forward. You keep on self-actualizing yourself. The three metamorphoses, the camel, the lion and the child. We need to, पहले तो हम camel में ही फंसे हुए हैं. We are stuck at the camel stage. Lion बनने में तो अभी बड़ी देर है. And then we have to become the child. It's a long, long journey. But until and unless we do not think for ourselves, we will never be able to break this barrier. Moving ahead. I just want to wrap it up in the next 10 minutes and then I want to have a question answer session with you. Education, middle class and education. The problem with middle class is they pursue education to get a naukri or to get a job. They do not pursue education for the purpose of skill build up. हमारे घर के जो मिमेटिक्स हैं, माँ कहती है यार पढ़ लिख जा तेरी नौकरी लग जाएगी. We never say कि पढ़ लिख जाओ, स्किल सीखो. Again, जब इस तरह के माइंडसेट पे चलेंगे कि when you use education as a platform that can lead you to a job, तो फिर आप उस जॉब के अंदर ही फंसे रहेंगे. ऐसा नहीं है कि जॉब करके आप अमीर नहीं हो सकते, आप अमीर हो सकते हैं. That's again a myth that I want to bust. You can do a job and you can become rich. लेकिन आपका काम है, यूथ का काम है कि मुआशरे में अपॉर्चुनिटीज पैदा करें एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स के जरिए. जहां आपने एक काम शुरू किया था वहां पे 15 लोग, आपने उस काम को शुरू करके 15 लोगों को नौकरियां दी. थिंक लाइक दिस. एंड व्हाई डू आई थिंक लाइक दिस? बिकॉज
आई ऑलवेज से कि अगर आपने मेरे साथ एसोसिएट होना है तो कैमरे के पीछे आगे, मैं तो कैमरे के सामने होता हूँ लेकिन मेरा 90% जो काम है वो कैमरे के पीछे हो रहा होता है. I take a step back, I go up 35,000 feet in the air and I see how can I influence the life of my people. आप भी इसी तरह सोचा करें, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट द पीपल अराउंड यू, कि कम्युनिटी के अंदर मैं जॉब क्रिएशन कैसे कर सकता हूं, कम्युनिटी के अंदर मैं लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर कर सकता हूं, पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा कैसे इंप्रूव कर सकता हूं. आई रन अ कंपनी where we are working on the water problem of Pakistan. Do you know that only 35% of the people have access to clean drinking water in Pakistan? 65% के पास तो पानी ही नहीं है. They don't have water. And we are rich. आप लोगों ने ज्योग्राफी में आपको पता है क्या पढ़ा है? नॉर्थ एंड साउथ पोल पढ़ा है? But do you know there is a third pole? Any one of you knows there is a third pole? And you know where's that third pole? It's in Pakistan. Pakistan has the largest glaciers in the world. आज जरा जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये जो हिंदू कश हिमालयाज रीजन है स्ट्रेचिंग ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, दिस इज नोन एज द थर्ड पोल. पाकिस्तान के पास मैसिव ग्लेशियर्स हैं जिनसे हम पानी निकाल के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और मैंने तो उस पानी को खुद जाके हुंजा में, पासू में जाके खुद पानी के ऊपर रिसर्च की है, पानी की केमिस्ट्री देखी है. वो पानी जो पाकिस्तान में 1400 रुपए की बोतल मिल रही है 750 ml की वॉस की, उसका जो मिनरल कंटेंट है पाकिस्तान में उससे बेहतर मिनरल कंटेंट है नेचुरली, द ग्लेशियल वाटर इन हुंजा. व्हाई नॉट? इट्स वेरी फेमस. आज रेकोडिक में, द अदर डे आई वाज एट अ ज्वेलर, आपको पता है रेकोडिक के अंदर 5 लाख आउंस गोल्ड एक्सट्रैक्ट होगा सालाना. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. थर कोल, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स ऑफ कोल. ये तो मटीरियल चीजें हैं. आज यूएस क्यों कामयाब है? मटीरियली, मिनरली इट्स रिच, बट इट्स द पीपल विच मेक द कंट्री. तो मेरी बुक का जो मेन आइडिया है ना, आई हैव स्पोकन इन द बुक अबाउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एज वेल, आई हैव स्पोकन इन द बुक अबाउट फिलोसॉफिकल स्कूल्स की मैंने बात की उसके अंदर, कि सोशल स्टडीज को निकालें और अगर पढ़ानी भी है तो न्यूट्रल गोरे ऑथर से लिखवाएं पाकिस्तान स्टडीज, नॉट फ्रॉम अ बायस्ड लेंस. और पाकिस्तान में खुद इंशाल्लाह अभी मैं आते हुए, एंड आई यूज द वर्ड इंशाल्लाह, अभी आते हुए गाड़ी में, यू नो, बैठे बैठे कभी इंसान को ना दे कम्स अ टिपिंग पॉइंट इन लाइफ, यूरिका मोमेंट इन लाइफ. तो हुआ ये कि व्हेन आई वाज कमिंग, तो मैंने सोचा कि यार फिलॉसफी को पाकिस्तानियों को किस तरीके से पढ़ाया जाए. तो आई प्लान्ड माय थर्ड बुक. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू दैट और नॉट. मेरी जो तीसरी की बुक है वो है फिलॉसफी फॉर ग्रेड 1. ये मैंने अभी आते हुए सोचा मोटरवे पे कि मैं अपनी जो तीसरी किताब लिखूंगा, मैं फलसफे को बयान करना शुरू करूंगा. एक पाकिस्तानी बच्चा जो क्लास 1 में, उसको शुरू से बताओ कि नीचा कौन था, उसको शुरू से बताओ कि डेकार्ड का क्या फलसफा था, उसको शुरू से बताओ स्पिनोजा कौन था. व्हाई नॉट? हमें खौफ आता है. व्हाई आर वी स्केयर्ड ऑफ फिलॉसफी? कोई भी मुल्क, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी नेशन फलसफे के बगैर चल ही नहीं सकती. पाकिस्तान में, आई वाज यस्टरडे विद डॉक्टर तैमूर रहमान, ही टीचेस एट लम्स. वो कहते थे, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि फलसफा जो पढ़ रहे हैं लोग कहते हैं इसको और कोई काम नहीं है, फलसफी है. हालांकि फलसफा इज राइट देयर एट द फाउंडेशन ऑफ पूरी अमेरिकन सोसाइटी. जॉन रॉल्स के जस्टिस सिस्टम पे चलती है. जर्मन फलसफा कितना ग्रेट है, कांट से लेके, हाइडेगर से लेके, नीचा से लेके, यू नेम इट, हेगल से लेके, यू नेम इट. इसी तरह अपना ब्रिटिश फिलोसोफर्स को देख लें, ईस्टर्न फिलोसफी को देख लें, जापानीज फिलोसफी, रशियन लिटरेचर को देख लें. यार, नो कंट्री कैन सर्वाइव एंड थ्राइव विदाउट स्टडिंग फिलोसफी. तो मेरा उस बुक में एक प्रपोजल ये भी है टू एस्टैब्लिश फिलोसॉफिकल स्कूल्स अक्रॉस सिटीज, जहां पे, जैसे हम डेकार्ट की बात कर रहे थे, हम लोग एक गैदरिंग करें छोटे बच्चों की. पहले तो एक स्कूल का करिकुलम में डालें. आज कोई स्कूल नहीं है मेरे ख्याल में, देयर इज नो स्कूल इन पाकिस्तान, आप मुझे बता दें, इस्लामाबाद में शायद हो, जो ग्रेड 1 के लेवल पे बच्चों को फिलॉसफी पढ़ा रहा है. Is there a school that exists?
I want to establish this school. I want to teach the kids right from ground the importance of studying Marcus Aurelius or the importance of studying Stoicism. Let their child fly high. Let them be a independent thinker. आप उसके जहन में बचपन से डॉगमा, रिचुअलिज्म, तो हम परस्ती डाल देते हैं. उसके बाद वो कहता है कि यार मुझे एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया, तो वो कहता है जिन्नात चिमड़ गए मुझे. One of my friends, she works in a local hospital in Sindh, in Karachi. वो अक्सर मुझे पिक्चर्स भेजती रहती है अपना कि हॉस्पिटल में जो बच्चे आते हैं, नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है. The other day she sent me a picture. एक बच्चे के हाथ पे ना एक जादूगर ने क्या आमिल ने ड्राइंग की हुई थी. मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये ड्राइंग है. उस बच्चे को ना जॉन्डिस हो गया था, तो उसने वो ड्राइंग की, कोई अमल किया कि ये बच्चे का जॉन्डिस सही हो जाएगा. अब यहाँ तक तो स्टोरी ठीक थी. एंड देन शी टोल्ड मी समथिंग व्हिच जस्ट एब्सोल्युटली ब्लू माय माइंड. वो कहती जब मैंने इस बच्चे की माँ को चेक किया ना, तो उस माँ के ब्रेस्ट के ऊपर भी ये राइटिंग थी. क्यों? कि उसकी ब्रेस्ट से दूध आना शुरू हो जाए. वो कहते वो मैं पिक्चर तो मैं नहीं भिजवा सकती हूं. वो कहती बच्चे आते हैं यहां पे, गले में पूरा हार बंधा होता है पत्थरों का, उसके वेट से ज्यादा, 600 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ है, 800 ग्राम का, उसके वेट से ज्यादा हार पहनाया होता है कि यार इसकी तबीयत ठीक हो जाए. दिस इज द सोसाइटी वी बिलोंग इन. सो वी आर डी. और आप कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं पाकिस्तान में, these things do not leave you. They keep on following you. Why? You were born this way. I want to change absolute roots of Pakistan, Pakistani thought process. क्योंकि जब तक आप फाउंडेशन सही, वो कहते हैं चाइनीज proverb है, fish rots from the top. But actually, fish rots from the top, it rots from the bottom, it rots from everywhere. And in Pakistan, this dogma of the society, which is right there in its inception, is done right at the ground level, at the roots level. When the child is growing up, that's where the problem lies. Do not treat cancer with Disprin. We need to do a chemotherapy. Only then cancer will go away. Otherwise, we'll keep on working on these lines and there will be no way out. At the last, I want to end my talk with a शेर from Ghalib. और जो मेरी टॉक है उसका एसेंस है उस शेर के अंदर. वन ऑफ माई फेवरेट शेर है कि वफादारी बशर्ते अस्तवारी असल ईमा है. वफादारी बशर्ते अस्तवारी असल ईमा है. मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को.